Hello friends, welcome. So as you know that IBPS SO cutoff is out and the cutoff I will speak here. So all IBPS SO cutoff first I'm going to speak. Then whatever doubt you are having in your mind you can unmute and you can ask. So you have to raise your hand. So first we are having here Anup Singh. ठीक है Anup Singh, just be ready. तो जो जिसको भी जो डाउट है you can raise your hand. So one by Anup के बाद Arjit Anonymous, then Arshita Gupta. तो हेलो आई सर, विल आई हैव वन क्वेश्चन सर। अभी नहीं, एक सेकंड अनु, पहले मेरे को फिनिश करने दो. देन वट एवर डाउट यू आर हैविंग यू कैन आस्क. ओके, जस्ट बी रेडी क्वेश्चंस. तो आई बिलीव माय सर स्क्रीन इज विजिबल. अनु, स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। बस अब 1 मिनट कर दो. So, guys, this is the official website of IBPS SO, and here you can click and you can check your scorecard. And I believe you have visited your scorecard. So this is one of the scorecard which is shared by student. Here you can see the cutoff and the obtained score, whatever the score. So this student has obtained 21.25 out of 60. So this student applied for IT officer here. So 60 में से इनका कितना आया है? 21.25 इनका marks आया है. So as you are going to visit the website, so here we are having the cutoff. So first we are having the cutoff for the IT officer. So IT officer के लिए सिर्फ जो जनरल का cutoff है वो बात करूंगा, that is 16.50 जो आपका cutoff गया था. Next page. Then we are having the agriculture field officer जिसमें जो आपका जनरल का cutoff गया था वो 17 का गया था. ठीक है. Next page. Then we are having here Rajbhasha Adhikari. In that we are having the cutoff of 14.75 for general. Then we are having the law officer. In that law officer the cutoff is 44. 44 नंबर चला गया out of 60, जो बहुत ही high cutoff गया है. Then moving ahead, then we are having the HR or personal officer. Then it is cutoff is 27.25 marks for general. And in the last marketing officer, we are having the marketing officer here. So the cutoff is 18.50. Okay, so these are the cutoff here. So I believe maximum students are here from the, we can say, IT officer. So mainly I will focus on the IT officer here. So this is the word file which I have made. So in that we are having the red zone, we are having the yellow zone, and we are having the green zone. Okay, so whatever doubt you are having, I am going to take your doubts now. So first is Anup Singh. अनूप है. अनूप के बाद में जो जो स्टूडेंट्स हैं तो आप यहाँ पे वन बाय वन यू कैन रेज योर हैंड. अनूप के बाद अर्जित, अनोमस, अभिषेक, ऐसे आप यू कैन रेज योर हैंड एंड आई विल आस्क यू टू अनम्यूट. ठीक है, क्योंकि एक सर एक करके. हाँ अनूप, पूछो ना. सर, आई गॉट 23.25 मार्क्स इन एसओ आईटी विथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। सर कोई चांस है सर सिलेक्ट होने का? 23.25 सर। 3.25 एंड व्हाट वाज योर कट ऑफ? ईडब्ल्यूएस सर। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना गया था? सर 14.75। 14.75 ईडब्ल्यूएस का कटा गया था. और इसका जनरल का कितना गया था? 16.50. 16.5 सर। यस अब सर। देखो इसमें सर आता क्या है, रेड जोन आता है, येलो जोन आता है, ग्रीन जोन आता है. दिस इज फॉर एवरीवन. जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी एक बार इस चीज को देख लें. तो रेड जोन क्या होता है? रेड जोन होता है वो जोन जो एकदम कट ऑफ के नियर बाय है. तो जिसके भी, मान लो कि लेट सपोज व्हाट एवर द कट ऑफ इज है 16.50. तो जिसके भी 16 या इसके +3 मार्क्स के अंदर रहते हैं, मतलब किसी के 17 है, 18 है, तो उसको रेड जोन में कहते हैं. रेड जोन है, इससे मतलब आपको साफ साफ लग गया है पता. आई डोंट वांट टू स्पीक. देन वी आर हैविंग द येलो जोन. अब येलो जोन रहता है कि +2, जिसके यहाँ पे जो रेड जोन है, रेड जोन में जो भी उसके मार्क्स आए थे रेड +2, तो मतलब यहाँ पे जिसका 16 था, 16 + 5 अप्रोक्सीमेटली 20 वी कैन से 20 और 21 मार्क्स वी कैन से हियर. ठीक है, तो ये आपका येलो जोन आता है. येलो जोन में ये रहता है कि सर आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है या जो आपकी सेकंड प्रेफरेंस है वो आपको शायद मिले या ना मिले. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, maybe you may or may not get your first or second preference that you have put in your IBPS SO. It is totally depend on luck. ग्रीन जोन आता है अगर आपके यहाँ पे +3 +2 ये आ गए और इसमें +3 और आप जोड़ लो, मतलब कि यहाँ पे आपके अगर +7 या आपके +8 मार्क्स आ रहे हैं कट ऑफ से ज्यादा,
व्हाट एवर द कट ऑफ, जैसे आपकी कट ऑफ यहाँ पे 16 गई है, 16 प्लस आप 8 कर लो तो यहाँ पे आपके कितने आ गई है, 24 हो गया। अगर आपके इतने आ रहे हैं +7 वगैरह आ रहे हैं, इसका मतलब ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन मतलब क्या है, देर आर वेरी 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 हाई चांसेस दैट यू आर गोइंग टू गेट योर फर्स्ट प्रेफरेंस। आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो आपको मिलने वाली है। ओके अनूप, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, यू गॉट 23.25। तो मेरे हिसाब से आपका यहाँ पे येलो और रेड जोन के बीच में आप आ रहे हो, तो देर आर फ्यू चांसेस, वी कैन से 50% चांसेस दैट यू मे गेट योर फर्स्ट प्रेफरेंस, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल सकती। बट यहाँ पे आप ईडब्ल्यूएस के अंदर हो, तो ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ कम गई थी एज कम्पेयर टू जनरल। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ ईडब्ल्यूएस मेरे हिसाब से आप ग्रीन जोन के अंदर आ जाते हो, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिल सकती है। सर मेरा Any- इंटरव्यू भी क्वाइट गुड गया था सर, जितने भी टेक्निकल पूछे थे सारा मतलब बता दिया था, और बैंकिंग से रिलेटेड 2-3 ही क्वेश्चन पूछे थे, उसके बाद उन्होंने थैंक यू बोल दिया था सर। गुड गुड अनूप, अच्छा रहा, चलो बढ़िया है। तो थैंक एनी यू मोर सर। डाउट? ओके, वेलकम। नो आपको सर, मेरे नो। इंटरेक्शन हो चुका है ना, पहले भी आप आ चुके हो ना? यस सर, यस सर। चलो ठीक है। थैंक यू अनूप सो के मच बाद, सर। ओके वेलकम, अरिजीत सौरभ। अजीत, आपका कोई डाउट है? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अजीत। सर मेरा थोड़ा गंभीर सवाल है सर, आप बहुत एक्सपीरियंस है इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ सर। कुछ भी मतलब यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन मत पूछना जो किसी भी एंगल में नेगेटिव हो, या किसी बैंक या किसी इंस्टीट्यूट या किसी पर्सन के अगेंस्ट हो, ऐसा कुछ कोई क्वेश्चन मत नहीं नहीं पूछना। नहीं 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 सर, वैसा नहीं है सर। सर एक्चुअली सर मैं एसबीआई इंटरव्यू दिया था, एसबीआई एसओ का, उसमें नहीं हुआ मेरा। और ये मेरा सेकंड लास्ट चांस है। मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, तो हम्म। 30 के हिसाब से तो मेरे पास एक ही चांस है। इसके और बाद एक और चांस रहेगा, राइट? ये सर इसके बाद एक और चांस है। तो आज जो स्कोर कार्ड आया है सर, तो उसमें मेरा 16.50 आया है, मतलब जितना कट ऑफ क्या है बात है। यस सर। सो तो मैं ये पूछना चाह रहा था सर, क्योंकि हाँ, मेरा इसमें सर, हाँ एक्सपीरियंस एक नहीं चीज है और, बिल्कुल आईटी, बिल्कुल। आईटी में एक्सपीरियंस नहीं है सर। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि मैं डेडिकेटली अगला 1 साल दे दूं या फिर मैं स्विच करूं प्राइवेट में सर। अगर आपके पास फाइनेंस स्टेबिलिटी है एज ऑफ नाउ, जी फाइनेंस सर। स्टेबिलिटी है एज ऑफ नाउ, तो जी, मेरे हिसाब से पेरेंट्स तो दोस्त, सपोर्टिव हैं सर, वो हाँ तो अगर कहते हैं आपके पेरेंट्स, आपके कोई भी इन लॉज वगैरह, मतलब जो भी आपके अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो इन माय ओपिनियन इफ यू रियली वांट टू जॉइन बैंकिंग इंडस्ट्री, अगर जी आपके मन में है, तो देखो अपनी जो लाइफ होती है बहुत बड़ी लाइफ होती है, तो जी कल सर। को ऐसा ना हो कि आपको रिग्रेट हो। तो मेरे हिसाब से फैमिली सपोर्ट कर रही है, 1 more year यू शुड गिव टुवर्ड्स दिस एग्जाम। मतलब जितना आपका 100% है उसका 100% लगा दो, यार ये 1 साल, अब नहीं तो फिर नहीं, मतलब वैसा आप प्रिपरेशन करो। अब इसमें एक चीज और है सर, कि मान लो कि आपके 16.5 है, कट ऑफ के लगभग है। अब यहाँ पे जो इंटरव्यू है वो भी मैटर करता है। जी मेरा इंटरव्यू तो अच्छा गया था सर, इंटरव्यू में, मतलब अब इंटरव्यू में सर, इंटरव्यू के मार्क्स कितने होते हैं? इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं 20 मार्क्स। अब मान लो कि एक स्टूडेंट है, मैं यहाँ पे जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट के मान लो मार्क्स आए हैं 18 आउट ऑफ 60, लेट सपोज, ठीक है। एंड जो कट ऑफ यहाँ पे, मैं यहाँ पे जो है कट ऑफ में लिख लेता हूँ 16.50, लेट सपोज दिस इज अ कट ऑफ, एनी कट ऑफ। इस स्टूडेंट के यहाँ पे +2 आए हैं, और यहाँ पे सर आप हो, आपके मार्क्स आए हैं जस्ट एग्जैक्ट द कट ऑफ, जो आपके कट ऑफ गई लेट सपोज इतनी है। अब इंटरव्यू में डिपेंड रहता है कि इन दोनों के कितने, अगर इस स्टूडेंट के सिर्फ 10 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 20, और आपके यहाँ पे लेट सपोज 17 मार्क्स आ गए आउट ऑफ 20, तो अब आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली एडवांटेज में आ जाते हैं। एज यू नो दैट इस जो आपका जो मेंस मार्क्स रहता है, इसका वेटेज कितना रहता है? 80% इसका वेटेज रहता है। और इंटरव्यू का वेटेज कितना रहता है? 20% 20। वेटेज रहता है। बट ये जो 7 मार्क्स हैं, ये आपको कुछ ना कुछ लेंगे, तो दोनों लगभग सेम आ जाएगा। अब इसमें एक चीज भी होती है सर, एज फैक्टर। लेट सपोज कि आफ्टर इंक्लूडिंग योर इंटरव्यू मार्क्स एंड योर मेंस मार्क्स, आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो 1 अप्रैल को आएगा, एज यू नो दैट, ठीक है। फाइनल रिजल्ट कब आएगा? मेंस प्लस इंटरव्यू 1 अप्रैल को। लेट सपोज टू स्टूडेंट गॉट सेम मार्क्स, टू स्टूडेंट है जिनके सेम मार्क्स है, मान लो एक स्टूडेंट गए हैं 25.47, और एक और स्टूडेंट है उसके भी आए हैं 25.47, लेट सपोज बोथ के सेम है। अब जो कट ऑफ गई है, फाइनल कट ऑफ,
जो फाइनल कट ऑफ गई, लेट सपोज वो भी गई है 25.47। अब इसमें किसका होगा सिलेक्शन? जिसकी एज ऑफ ज्यादा होगी, जिसकी एज ज्यादा होगी या जो ओल्डर होगा, ही विल गेट प्रेफरेंस। तो यहाँ पे अब आपको प्रेफरेंस मिलेगी एज कंपेयर टू ए फ्रेशर। अगर फाइनल कट ऑफ इतनी गई है, फाइनल कट ऑफ में मान लो 3 स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट है, तो उस कट ऑफ में जिसकी एज ज्यादा होगी उसको प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है। ओके सर। सर लेकिन एक और डाउट था सर। सर एक डाउट बस यही आ रहा है सर कि मैंने पिछले साल पूरे डेडिकेट होके एग्जाम किया था, अपन एकदम तो लास्ट में बात करते हैं। जी ठीक है, ठीक है वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। ओके ओके। नेक्स्ट अनूप, आपका क्वेश्चन हो गया, कैन लोअर योर हैंड। अनोमस यूजर। नमस्कार सर। Sir, one more question. अनूप, यू हैव टू रेज योर हैंड अगेन ब्रो। Sorry, sir. हेलो सर। लास्ट में बात कर लेंगे आराम से। जी 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 सर, जी सर, ओके। हाँ मैं पूछो बोलूं ना। सर या हाँ थोड़ा बोलो ना। वेट करना? अरे बोलो यार। सर एक्चुअली आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो भी इंटरव्यू गया है, बिकॉज सब इंटरव्यू पैनल तो बड़े वो फ्रेंडली होते ही हैं, डिप्लोमेट बनते हैं, सो हम उसको किस तरह से जज करें कि मतलब जैसे मुझसे ज्यादा पर्सनल क्वेश्चंस पूछे फैमिली के बारे में, टेक्निकल कम पूछे, सो इज इट अ गुड साइन और अ बैड साइन? या फिर मान लो किसी ऑन द के एक दो इंटरव्यू क्वेश्चन पैनल, मिस हो इट चुके इज हैं इट इज तो फिर नॉट ए उसको गुड। मतलब Okay, okay, I understand the question. देखो, sometime in interview, let's suppose you and I both gave for the interview for IT office. So you applied for IT office, right? यस सर। Okay. So let's suppose you and I both gave the interview. For me, they ask majority of question related to IT, and for you, they ask majority of question non-IT question. बट अब ये मैटर नहीं रहता है कि आईटी वाले को मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, नॉन आईटी वाले को कम मिलेंगे। ये इंटरव्यू के ऊपर रहता है, जो रहता है पैनल, उनकी क्या थिंकिंग है। उनको देखो, किसी को ऐसा लगता है कि यू हैव क्लियर द मेंस एग्जाम, राइट? इट मींस दिस गाय नो आईटी स्टफ। इफ आई आस्क आईटी रिलेटेड क्वेश्चन, I think he can easily answer all the questions. So let's ask some anything extra which he is not prepared. So spontaneous पे अगर मैं on the moment कुछ क्वेश्चन देता हूँ, कुछ सिचुएशन देता हूँ, how you are going to react, तो उस टाइप के भी कुछ इंटरव्यू रहते हैं पैनल जिनकी ऐसी थिंकिंग होती है, तो वो आपसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस भी पूछते हैं, देखने के लिए आप कैसे रिएक्ट करते हो। तो दोनों को ही इक्विवेलेंट मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, आईटी से सिर्फ आईटी के क्वेश्चन पूछे गए तो उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। फिर भी सर हम कैसे मतलब इसको प्रेडिक्ट कैसे करें कितना आएगा इंटरव्यू में? जैसे मान लो मेरा नहीं, एक इसको कोई नहीं टेक्निकल कह क्वेश्चन सकता, ढंग से। कोई नहीं कह सकता हाँ। इसको, नोबडी कैन से। और इसमें एवरेज कितना है? मतलब अगर मंडे ने इंटरव्यू गया बड़ा ऑर्डिनरी तो कितना भी कितना मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते देखो, हैं? आउट ऑफ 20, इन माय ओपिनियन, एवरेज मार्क्स इज अप्रोक्सीमेटली 11 के आसपास रह सकता है। 10, 11, 12 के लगभग हम एवरेज मार्क्स कह सकते हैं। लेट सपोज इफ आई आस्क यू 10 क्वेश्चन एंड यू हैव आंसर 6 क्वेश्चन, सो विच इज एवरेज, राइट? यस। सो यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ मार्क्स। ओके सर। एंड दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि सर जैसे इस बार मेंस की कट ऑफ भी हाई गई थी, हाई है, तो इस बार आपको लगता है जो फाइनल कट ऑफ है वो भी हाई जाने के चांस है, उतना ही रहेगा, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा? फाइनल कट ऑफ में नहीं सर, जितना वैकेंसीज था उसके हिसाब से इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया था। एंड एज यू नो दैट 1:3 रहता है आपका ना। अब आपका हम्म। जो भी ये कट ऑफ गया है, तो इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा आपको। बिकॉज बहुत लोग कह रहे हैं कि जिनकी प्रीलिम्स इजीली क्वालिफाई हो गया तो जो आईटी स्पेसिफिक जो लोग थे उनके मतलब पेपर ज्यादा अच्छा गया, बिकॉज प्रीलिम्स में मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई उन्हें सेलेक्ट होने में। तो नहीं, एक वो ये थ्योरी ऐसा थी। कुछ नहीं, देखो ऐसा एंड कुछ। और माई एक और स्क्रीन चीज इज सर आप विजिबल टू थोड़ा यू। सा। हाँ सर बोलिए। देखो, आपका जो मेंस एग्जाम रहता है वो 60 का रहता है, राइट? यस। 60 में से आपके मार्क्स कितने आए थे? मेरे सर 20 आए हैं, मैं ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ। आपके मार्क्स है 20, ठीक है। अब ये जो 60 है, ये किस में चेंज होगा? 80 में होगा। अब आउट ऑफ 80 आपके कितने मार्क्स बने? 26.66। 26.66। चलो पूरा कैलकुलेट करके बैठे हो ना। अब आपका सर इंटरव्यू रहता है, ठीक है। इंटरव्यू यूजुअली 100 मार्क्स का होता है, बट इसको चेंज किया जाता है इन 20 मार्क्स, सो दैट अब यहाँ पे 80 आपके मेंस मार्क्स के आ गए, और प्लस आपका जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के आपके हो गए 20 मार्क्स, और टोटल ये आपके 100 हो गए। तो फाइनल कट ऑफ किस में आएगी? 100 में आएगी। अब यहाँ पे जो आपके इंटरव्यू है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब मान लो कि आपके इंटरव्यू के अंदर आ गए 14 मार्क्स, और यहाँ पे आपके आ गए 26.66। अब ये आपका, ये कितना बन गया आपका? 30.66 बन गया ना? नहीं 40, सर 40.66। 40.66 बन गया। अब ये जो स्कोर है, ये डिसेंट स्कोर माना जाएगा।
आउट ऑफ 100 ये एक डिसेंट स्कोर है। वाई? क्योंकि यहाँ पे आपने जो गेन किया है जो कट ऑफ के मुकाबले, वो आपको लास्ट तक गेन देगा ही देगा। अब जो कट ऑफ है वो मेंस के हिसाब से ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाती है। एग्जैक्ट फिगर आई एम नॉट एबल टू से, बट ये जो जोन मैंने बताया है, रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन, इससे एक आइडिया आपको लग जाएगा यस इन विच जोन यू आर। ठीक है। एंड सर ये इस बार एसबीआई ने भी सेम टाइम पीरियड पे कंडक्ट कराया, तो आपको लगता है जैसे कुछ स्टूडेंट्स उसको प्रेफर करेंगे तो उससे फ्लक्चुएशन अब होगा कुछ इसमें फाइनल ये प्लेसमेंट? चीज है कि जो आपका रिजर्व लिस्ट है ना, हम्म उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आने के चांसेस हैं फॉर आईटी ओनली। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं दोज हु गॉट सेलेक्टेड इन एसबीआई, एंड आल्सो आई आल्सो नो a few students who are for sure they are going to clear IBPS also all those, so they are going to prefer according to their, so यहाँ पे I'm not able to speak anything about your preference because it is your life, it is your choice, you have to pick where you want to go. So reserve list में ज्यादा स्टूडेंट्स कॉल किए जाएंगे यहाँ पे इस बार लेस एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर इन आईटी, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने और भी एग्जाम्स दिए हैं। सर ये रिजर्व लिस्ट मतलब उसी दिन आती है तो मतलब बाद में ये रिजर्व रिलीज लिस्ट करते हैं? वैसे ईयर में लगभग, अब इसका फिक्स तो मेरे को याद, किसी को याद है फिक्स रिजर्व लिस्ट? एक रिजर्व लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ, एक रिजर्व लिस्ट आपको लास्ट आती है तो आपका ये 30 अप्रैल ना, 30 मार्च के लगभग एक रिजर्व लिस्ट आती है। 30 मार्च होगा तो, क्योंकि 1 अप्रैल को रिजल्ट आएगा तो 30 मार्च को भी रिजर्व लिस्ट आएगा जो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम रहे थे। एक तो रिजर्व लिस्ट आपकी ये आएगी, जब भी नया रिजल्ट आएगा उससे एक दिन पहले एक रिजर्व लिस्ट आती है, और एक रिजर्व लिस्ट आपके साल के मिड के अंदर भी आती है। ये 2 रिजर्व लिस्ट तो मेरे को पता है, बाकी का मेरे को एकदम अच्छे से आइडिया। एनीवन नो? यू कैन स्पीक इफ यू नो अबाउट रिजर्व लिस्ट। श्योर, बट जनवरी या फेब में आया था एक। जनवरी फेब में आईबीपीएस शायद 2 या 3 निकालता है, 2 तो सही बताया सर आपने। ये तो जो 31 लास्ट दिसंबर रिजल्ट को होगा ना आती है। उससे जस्ट पहले आता है। जस्ट आई विल शो यू हियर। 31 दिसंबर हाँ 31 दिसंबर के आसपास। एक जैसे वो फाइनल होता है क्योंकि आरआरबी के रिजल्ट के साथ आता है वो। आरआरबी एक का वो और आता एक है, हाँ 31 आरआरबी का मार्च को आता एकदम है। लास्ट में आता है, न्यू ईयर से एक दिन हाँ। जस्ट हाँ जी, पहले हाँ आता है। ये दो तो रिजर्व लिस्ट फिक्स है, 31 दिसंबर 31 मार्च। 31 दिसंबर और 31 मार्च, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, दो रिजर्व लिस्ट आपके यहाँ पे हो गई। ठीक है दोस्त, रिजर्व लिस्ट डाउट है? एंड अब सर सर नेक्स्ट, अब यानी नहीं सर, अब सर सर नेक्स्ट बोलिए क्वेश्चन, बोलिए। अब सर नेक्स्ट बस अदर यही था स्टूडेंट्स को कि भी सर मौका देना। यानी इस बार आप कह रहे हो जैसे ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं है, तो लास्ट ईयर ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि यार इतने से ज्यादा एक मार्क्स ही फ्लक्चुएट प्लस माइनस होएगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं ज्यादा तो नहीं होगा, मेंस के कट ऑफ के हिसाब से ही जाना चाहिए इन माय ओपिनियन। बिकॉज मेंस भी 1 मार्क्स बढ़ा है तो ज्यादा 1 मार्क्स बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ 1-2 नंबर तो आप मार्जिन लेके चल, आपके लिए तो अच्छा है, यू डोंट हैव टू वरी सो मच। अच्छा सर, वो पता नहीं, वो ठीक है। 14 का तो लग नहीं रहा, 11-12 आ जाए वही काफी है। एंड सर एक बार ये प्रेफरेंस वाला क्या बताया, येलो ग्रीन जोन में आप प्रेफरेंस बता रखा है ना, फर्स्ट सेकंड लिख रखा है, वो क्या है? प्रेफरेंस रहती है कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर ग्रीन जोन के अंदर आपके मार्क्स आते हैं +7 +8 कट ऑफ रहता है, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस यू कैन गेट योर फर्स्ट प्रेफरेंस। येलो जोन में मतलब सिलेक्शन हो सकता है उसके लिए, ये मतलब रेड जोन येलो एक बार वापस ये रिवाइज। चीज बोलनी नहीं चाहिए, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ओके सर, ओके ओके, ओके बस इतना ही क्वेश्चन है मेरे से। ओके, नेक्स्ट इज अर्चिता गुप्ता मैम, यू आर हियर। Hi, sir. हेलो मैम। I had one doubt, like in scorecard there are 2 columns, professional knowledge and for shortlisting. तो उसमें 2 कट ऑफ मेंशंस है, लाइक 10.25 एंड 16.5, तो मेरे उनका पास क्या? जैसे ये है प्रोफेशनल नॉलेज एंड शॉर्टलिस्टिंग, ये जैसे इसमें 6.75 एंड 13, इन दोनों कट ऑफ्स का इसका क्या? कोई मतलब नहीं है। इसका तो ये है कि इन्होंने बोल दिया कि चलो कट ऑफ क्लियर हो गया, हमें इससे मतलब है जिसको ये इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है, जिसके इतने मार्क्स आए हैं वही इंटरव्यू दे सकता है। अच्छा, इसको बोल दिया, इसका कोई मतलब नहीं निकलता, सिर्फ ये फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग ही आपके लिए मैटर करता है। ओके ओके मैम। ओके, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट इज अभिषेक सिंह। यस सर। सर मार्केटिंग ऑफिसर का डिस्कस कर सकता हूँ? हाँ हाँ करो ना, बिल्कुल। यस सर। सर मार्केटिंग ऑफिसर में मैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ एंड सर मेरे 27.50 मार्क्स आए हैं। आपके आपके कितने हैं?
27.50. 27 एंड आपकी जो कट ऑफ गई थी 14.50। यस सर। हाँ हो गया सिलेक्शन, चलो पार्टी दो। अरे हो गया भाई, सिलेक्शन हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन अभिषेक है। चलो दोस्तों, एक थैंक यू अभिषेक का तो सिलेक्शन हो गया यहाँ पे। आपका बहुत ज्यादा वेरिएशंस है, सो यू डोंट हैव टू वरी। विच बैंक यू हैव पुट ऑन फर्स्ट प्रेफरेंस? पीएनबी? पीएनबी सर, पंजाब नेशनल बैंक। अरे नॉर्थ इंडियन का वही फेवरेट है। यस सर। चलो बढ़िया। एनी मोर क्वेश्चन यू आर हैविंग थैंक अभिषेक? यू सर। नो सर, नो। चलो अभिषेक, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट इज, ठीक है, इंटरव्यू में आई होप कुछ ब्लंडर नहीं किया हो, ठीक है, क्योंकि नो इंटरव्यू के सर। अंदर भी कुछ स्टूडेंट्स को फेल कर दिया जाता है, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। सर इंटरव्यू एवरेज गया था नहीं सर। नहीं, वो ठीक है, बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर कुछ अपोजिट डायरेक्शन में दे देते हैं बिकॉज ऑफ जेनजी जनरेशन नो काइंड सर, ऑफ। नो। तो वैसा कुछ आंसर ऐसा नहीं दिया है, कुछ स्लैंग स्लैंग या यो करके तो नो कुछ सर, हो जाता कुछ नहीं। है। ठीक है, अभिषेक के बाद अखिलेश कुमार। अभिषेक गुड यू इवनिंग कैन सर। लोअर योर हैंड। हाँ अखिलेश। सर एक्चुअली सॉरी, मैं किसी और का आईडी से लॉगिन किया हूँ। मेरा नाम उज्जवल है। हाँ उज्जवल। सर मैं जनरल हूँ और आईडी से बिलोंग करता हूँ और मेरे स्कोर आए हैं 23.75 23? किस फील्ड में, आईटी में? आईटी में। यस सर। हाँ 23। 0.75। 16 और जनरल है 16 17 18 19 यस 20। सर। सर तो उसको अगर एटीएन में प्लस कन्वर्ट 7 करेंगे है तो ना इट आपका? विल बी। हाँ, यस सर। तो मतलब आपका फर्स्ट थोड़ा सा डाउट है, बट है, चांस है, फर्स्ट सेकंड में आपका रह सकता है प्रेफरेंस। सर प्रेफरेंस टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को मतलब नहीं है, बस मेरे को ज्वाइनिंग से मतलब है। हाँ वो ज्वाइनिंग डिसाइड से मिल जाए। देखो, मेरे को तो प्रेफरेंस से मतलब होता है, आपको ज्वाइनिंग से बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये देखो, यस सर। जॉब मैटर करती है, जॉब मिले उसके बाद प्रेफरेंस बंदा सोचता है। एंड हम्म। आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू रियली नीड अ जॉब। एंड इन माय ओपिनियन हाँ। आपका +7 +8 आया है, तो आपके सिलेक्शन यस होने सर। के बहुत ज्यादा चांसेस है। और सर इंटरव्यू के बारे में बताऊं तो इंटरव्यू मेरा स्टार्टिंग ही हुआ, मतलब जो हमारे इंटरव्यू ले रहे थे इंटरव्यू। वो भी स्टार्टिंग किए ग्रुप। हम्म। सर मैं नॉर्थ से हूँ और मेरा इंटरव्यू बैंगलोर में था। तो इंग्लिश में जो भी चला होगा। पैनल थे वो, हाँ इंग्लिश में चला सर, वो इशू नहीं था। तो मैं जब इंटरव्यू किया तो वो लोग भी, उन लोग का एक्सेंट भी सर थोड़ा साउथ वाला ही रहता है ना। हम्म। तो उन्होंने स्टार्टिंग किया, गुड पर्सनैलिटी, हाँ। मतलब इंटरव्यू स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा रहा सर, मतलब उन्होंने भी कहा कि तुम्हारी गुड पर्सनैलिटी है, ऐसे वैसे करके स्टार्टिंग हुआ। गुड। सो इंटरव्यू भी सर मेरा बहुत अच्छा गया। वो लोग सब गुड, स्माइलिंग फेस था और सबका मतलब जितने भी इम्प्रेस हो सके उतना इम्प्रेस किया मैं। बढ़िया है ना, नाइस। तो सर ऐसा नहीं है ना कि पता चला नंबर भी कम दिए दिए नहीं नहीं यार, इंटरव्यू में। ये देखो मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, डिपेंड ऑन देम। एंड अब आप जो कह रहे हो कि वो रियलिटी है या कुछ है, दैट आई ऑल्सो डोंट नो, बट जो आप कह रहे हो उसके हिसाब से अबव एवरेज मार्क्स तो आना चाहिए। क्योंकि उन्होंने सिर्फ मेरे बारे में पूछा और लास्ट में उन्होंने पूछा कि बैंक में कैसे आप जो भी सर्वर होता है उसको कैसे आप डिफेंड करोगे, तो मैंने बताया मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह हाँ, 4-5 पॉइंट वो बताए उन्होंने। सब ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चंस हम हो चुका ऑलरेडी ना। हाँ एनी सर। मोर डाउट अखिलेश यू आर हैविंग? सर मतलब चांसेस हाँ 23.75 में है, यस। अ- अच्छे हैं या नहीं है, मतलब कुछ ऐसा मतलब बहुत अच्छे नहीं, अच्छे हैं। गुड चांसेस। हाँ, जैसे अभी एक स्टूडेंट था मार्केटिंग ऑफिस, उनका 100% था, वो वाला 100% तो मैं नहीं बोलूंगा, बट मैं कह सकता हूँ कि 98 99 तो है यार। कि जैसे 80 में 31.3 कुछ बन रहा है, हाँ, नहीं 31.6। अच्छा, ये अच्छा स्कोर है, मेरे हिसाब से हो जाएगा सिलेक्शन। ओके सर, थैंक यू सो मच ओके, फॉर द नेक्स्ट रिस्पॉन्स। इज ओके। राणा डीपी सिंह। हाँ यार देखो, मतलब जब हेलो। मैंने स्टार्ट किया था ना प्रिपरेशन, सो आई वाज नॉट हैविंग एनी मीडियम, कोई मीडियम नहीं है, किससे मैं क्वेश्चन पूछूं, कौन मेरे डाउट क्लियर करेगा, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, सो आई हैव रियलाइज यार लेट्स क्रिएट अ प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, अब यहाँ पे आप लोग भी आए, आपने क्वेश्चंस पूछे, अब आप और कहीं जाओगे तो वहां पे भी एक हेल्पिंग हैंड होना चाहिए। जो प्रॉब्लम आपने फेस की है, यू विल थिंक कि सर और कोई ये प्रॉब्लम को फेस ना करे, तो यही है, हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो आप भी आगे जब बैंक को ज्वाइन करो, जब न्यू ज्वाइन आएंगे, तो उनकी भी आप हेल्प करना, ठीक है? हेलो सर, यस गुड इवनिंग सर। सर। हाँ हाँ, राना पूछो ना दोस्त। सर मेरा ओबीसी है सर, 30 आए मार्क्स आईटी में।
कितना है 30? हाँ अरे ओबीसी में 30 नंबर आ गया तुम्हारा। यस सर। अरे क्या तो मेरा बात। स्केल 2 रह गया था ना थोड़ा एक नंबर से। अच्छा वो आरआरबी वाला। हाँ अरे हाँ। हाँ 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 याद आया। चलो तो बढ़िया है एक्चुअली बढ़िया में है। सर ये है, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं गया, एवरेज गया था। एवरेज गया ना, मतलब कुछ तो आंसर दे दिया था ना, ऐसा तो नहीं है ना कुछ नहीं दिया आंसर। हाँ मतलब वो 15-20 मिनट तक उन लोगों ने पूछा क्वेश्चन, नहीं मतलब फिर ठीक पूछते है। रहो जब तक फंसा नहीं लिए तब तक पूछते रहे। फिर 30 नंबर में बहुत होता है आपका, तो मेरे हिसाब से तो आपका सिलेक्शन 100% है। विच बैंक यू नहीं हैव पुट सर, ऑन ये फर्स्ट पीएनबी प्रेफरेंस? मिलने का चांस है क्या? पीएनबी पीएनबी को। रखा गया? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं यस चांस है। सर। पीएनबी का मैंने आरटीआई तो दिखा दिया था ना आपको। यस सर। मैंने दिखाया था, एक बार दिखा देता है यार आप लोग को। स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, sir। देखो एक्चुअली सर ये मेरा तीसरा ऐसा इंटरव्यू है, तो कोई बात नहीं। देखो ये पीएनबी है, तो पीएनबी का देखो 200 वैकेंसी है आईटी में ना। तो देखो स्टूडेंट्स बहुत है, मेरे हिसाब से आपको पीएनबी आराम से मिल जाएगा। अब जॉब मिल जाएगा सर पहली बात तो। हाँ बस ठीक है, चलो बढ़िया है। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट इज नंदिनी। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर मैं मेरा ये डाउट है, आज जैसे स्कोर कार्ड आया, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मेरे 23.75 मार्क्स आए 60 में से, मतलब 80 में 31.66 बन गए और मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था। बस एक क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दे पाई कोई थी बात मैं, नहीं। उसके अलावा मैंने सब बता दिया था वो अच्छे से। तो सर मेरे कितने चांसेस है सिलेक्शन के? कितने नंबर बताया मेंस में 60 में से? 23.75। 16। अच्छे चांस है, बहुत अच्छे चांस है आपके सिलेक्शन के। हेलो सर। सर यानी जो फाइनल कट ऑफ है उसकी जो हाँ प्रेडिक्शंस हो रही है, तो सर जैसे पिछली बार 39.755 करके गई थी करीब, हाँ। 40 से हल्की सी कम। इस बार वैसे मेंस का तो ऊपर चला गया, पर लोग भी काफी हो गए थे शॉर्टलिस्ट नहीं एंड मैम, हमारे इंटरव्यू के हिसाब से वैकेंसी बुलाया तो गया है। देखो जो आपका और अभी मेंस का जो आपका कट ऑफ गया है, उसमें अगर आपने इतना मार्जिन रखा है तो यू डोंट हाँ। हैव टू गो फॉर द प्रेडिक्शंस। तो आपका आराम से सिलेक्शन होने की बहुत बहुत चांसेस है, एकदम रिलैक्स रहो। 1 अप्रैल को रिजल्ट आ जाएगा, 1 अप्रैल को आईबीपीएस की वेबसाइट देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो सर मच सर। सर ओके मेरा मैम। डाउट बता दो सर, मुझे जाना है फिर सर। तो कहाँ जाना है तुम्हें? सर वॉक करने जाना है, मतलब कुछ अर्जेंट है। वॉक? हाँ पूछो यार फिर तो। सर मैं बोल रहा हूँ कि मतलब 28 नंबर आए हैं, लेकिन इंटरव्यू में कुछ मतलब खास उन्होंने पूछा नहीं था, मतलब ज़्यादा नॉन टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था नोएडा में। हाँ तो मतलब इंटरव्यू में तो फेल नहीं करते वो लोग। नहीं करते, फेल नहीं करते। तो 28 नंबर है, ओबीसी कैटेगरी, हाँ वो अच्छे नंबर है, पीएनबी काफी मिलेगा अच्छे। क्या? हाँ ओबीसी में क्यों नहीं मिलेगा पीएनबी। अच्छा अच्छा, बस यही डाउट था सर। बाकी आपसे ही पढ़ा था कुछ कुछ चीज़ें, काफ़ी मतलब काम आई। तो बढ़िया है, आई होप आई हेल्प यू समहाउ। बट हाँ, मैं एसबीआई में फेल हो गया, पता नहीं कैसे, अच्छे नंबर थे। कोई बात नहीं, देखो लाइफ है यार, फेल पास तो सब होते रहते हैं, इसमें कुछ नहीं है। बट यही आपने मेहनत तो की, तो एक जगह नहीं तो दूसरी जगह हो गया। चलो ये अच्छी चीज है ना। ठीक है सर, रिजल्ट का वेट करते हैं, आपको बताऊंगा, इन्फॉर्म करूंगा क्या रिजल्ट आया। बिल्कुल दोस्त। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट इज आनंद। सर निनावत जानो करें। नहीं संध्या आनंद है सर। आनंद यू आर हेयर? संध्या आनंद। अच्छा ये नहीं है मोहन। हेलो हेलो। हाँ बोलो ना यार। हाँ, सर एक मिनट। ओके ठीक है, ये 1 मिनट लेंगे तो जब तक मोहन, मोहना सॉरी। सर निनावत जानो। हाय मैम। हेलो। हाँ पूछो ना। हाँ सर, एक्चुअली गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं जनरल से हूँ और मेरा 20 मार्क्स आया है और इंटरव्यू अच्छा गया था। तो येलो सब जोन में सही है? आता हाँ। है, येलो जोन में आते हो दोस्त। येलो जोन मतलब?
वीडियो आपने लेट ज्वाइन किया क्या? हाँ सर। अरे यार, तो यार लेट नहीं होना चाहिए लाइफ में, टाइम से आना चाहिए। कोई नहीं, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि डाउट क्लियर करूं ताकि कल को तुम बोलो कि वो बताता ही नहीं भाई, कुछ ऊपर ऊपर से चला जाता है। देखो, रेड जोन होता है जिसका मतलब आपको पता लग गया नाम से ना। येलो जोन, ग्रीन जोन। ग्रीन जोन मतलब ये रहता है कि आपका सिलेक्शन, और सिलेक्शन के साथ साथ आपका फर्स्ट प्रेफरेंस मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। सो रेड जोन रहता है कि जो भी कट ऑफ गई है, वट एवर इज द कट ऑफ XYZ, कट ऑफ में अगर +3 आपके मार्क्स आ रहे हैं, अप टू +1 +2 +3, सो यू आर इन द रेड जोन। I don't want to explain the red zone. Now we are having the yellow zone. Yellow zone means you may or may not get your first, second preference, but selection is slightly confirmed. Selection जो है वो slightly confirm है आपका। 50-50 चांस है कि फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस मिल सकता है, मिल भी नहीं सकता है। सो आपके रेड जोन +2 मार्क्स आ रहे हैं, अगर +5 में आप लाई कर रहे हो तो येलो जोन में आते हो। अगर आपके +7 या +8 मार्क्स हैं कट ऑफ से, जो भी कट ऑफ गया है उससे +7 या +8 है, आप ग्रीन जोन में आते हो, वेयर योर सिलेक्शन इज ऑलमोस्ट कंफर्म। 99% योर सिलेक्शन इज कंफर्म, बट it is also having the very high chances that you may get your first preference. तो आपके जो मार्क्स है सर वो येलो मार्क्स में आता है, तो आपका जो जो प्रेफरेंस है, मे वी कैन से लेस चांसेस आर दे यू मे गेट योर प्रिफर्ड प्रेफरेंस, बट ये है कि सर आपका जो जैसे सिलेक्शन है उसमें हाँ, आपके चांसेस हैं। जैसे मेरा ये फर्स्ट सेकंड के बाद मेरा प्रेफरेंस यूनियन बैंक है, तो वो मिल सकता है? सर अभी मैंने बता दिया, उससे आपने देखो जो भी प्रेफरेंस रखा उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। तो आपका जो प्रेफरेंस है वो इस जोन के ऊपर ही बहुत ज्यादा मैटर करता है, बट जो मैक्सिमम स्टूडेंट है वो नॉर्थ इंडिया से हैं, तो वो पीएनबी को ज्यादा प्रेफरेंस करेंगे। सो जो पीएनबी के अलावा जो प्रेफरेंस है वो आपको मिलने के चांसेस हैं। अच्छा, और मतलब इसके साथ सिलेक्शन इंटरव्यू भी प्रोसेस मैटर करता है। इंटरव्यू अगर आपका अच्छा गया, येलो जोन में हो, बट इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, तो आप येलो से ग्रीन जोन में ऑटोमेटिकली आ जाओगे, या रेड से मतलब येलो। सिलेक्शन हो सकता है 20 पे? हाँ, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट इज मोहना। सर ने ना जानो can I ask? नहीं, अभी सर मोहना का नंबर, सर यू हैव टू रेज योर हैंड। Yeah, hi sir. Hello. यस मैम। Yeah, hi sir. I'm Mohana. Sir, I scored 23 out of 16 mains, and I'm from general category. So my interview went pretty good. Like, I couldn't answer just 2 questions. It was like non-IT questions. So, is there any chances, sir? Yes ma'am, there are very very high chances that you are going to get the job. Okay. Okay Thank ma'am, you, sir. all Yeah, the thank you. best. Thank you. नेक्स्ट इज रियल कर्मा। क्या रियल है क्या? रियल नहीं है शायद, चला गया। ठीक है, अनोनमस यूजर, आपका क्वेश्चन हो गया था ना? सर एक और क्वेश्चन पूछना था मुझे। आप पूछो ना। सर इसमें मुझे ये पूछना है कि जैसे पीएनबी की और बैंक ऑफ बड़ौदा मान लो कोई इनके जो वैकेंसीज हैं, तो इसमें भी जैसे जनरल ओबीसी एससी एसटी में मतलब सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है हर बैंक का? यस, एवरी बैंक इज हैविंग देयर सेपरेट सीट्स फॉर जनरल SC तो ST। लेट्स से सर जिस एक स्टूडेंट है ओबीसी उसके मान लो ज्यादा मार्क्स आ गए एंड उसके मतलब यूआर में उसको सीट मिल गई, बिकॉज ऐसे हाँ ही होता है यूजुअली कि हाँ, मतलब यूआर यूजुअली में यस यस, एग्री एग्री एग्री। तो अगर तो आप फिर हम्म मतलब वही कहना चाहता हूँ, तो उसका तो जैसे एक बार यूआर में आ गया बट उसके इतने नहीं बने कि वो पीएनबी की यूआर की सीट मिले उसे। हाँ, और मेरे मान लो कि मैं ओबीसी में है और मेरा मान लो टॉप 20 ओबीसी में आ जाता है, ठीक है, यूआर में नहीं आ पाया, तो मेरा ओबीसी में मतलब ज्यादा चांसेस हो जाएंगे, मतलब पीएनबी में ज्यादा चांस हो जाएंगे मिलने के प्रेफरेंस? अगर यू आर, हाँ, चांस हो गया ना। देखो, सबसे पहले जो कैटेगरी है उसको हटा दो। आपका ठीक। सबसे पहले आपको हर एक सीट्स के, जैसे 100 सीट्स है तो 100 में से कुछ जनरल का, कुछ ईडब्ल्यूएस SC ST रहेगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में आते हो अपार्ट फ्रॉम जनरल SC, तो फर्स्ट यू आर गोइंग टू फाइट फॉर विद इन योर कैटेगरी। आप उस कैटेगरी के अंदर ही फाइट करोगे। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, बहुत ज्यादा नंबर आ गए, तो आप जनरल के अंदर फाइट करोगे। ठीक है, और उसमें आप उसी टाइम फाइट आप करोगे तब आप बाकी जनरल स्टूडेंट से आपके ज्यादा नंबर आ रहे हैं।
let's suppose the cutoff for general is 40 marks and the cutoff for OBC is 38 marks and you got 60 marks. So automatically you are going to get first preference as well as you are going to consider as a seat of जनरल. तो आपको जनरल की सीट मिलेगी क्योंकि आपके मार्क्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. जब आप कट ऑफ अपनी अपनी कैटेगरी से बाहर आ जाते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिलती है. ओके अगेन सर थोड़ा कंफ्यूजन वापस पूछता हूँ कि जैसे मान लो कि मेरे यूआर का जो इतने आगे की जो यूआर का जो एवरेज है उससे ज्यादा है, इतना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बट आई गॉट द मिनिमम, जब यूआर की जो फाइनल लास्ट मिनिमम कट ऑफ है उसके अंदर आ गया किसी का. हाँ, तो फिर उसको मतलब अगर यूआर का अगर उसे मिल गया तो ऑब्वियसली उसको सिर्फ यूआर की जो सीट्स है पीएनबी में उसी में ही मतलब उसको फाइट करना पड़ेगा यानी. ये एमबीपीएस का इंटरनल मैटर है. ओके, बिकॉज वो थोड़ा कंफ्यूजन लगा कि यूआर तो सीट तो मिल गई उसे, बट यूआर में अगर उसकी मतलब रैंकिंग थोड़ी नीचे है या मेरिट उसकी थोड़ी नीचे आ गई यूआर में तो उसको फिर वैकेंसी का मतलब प्रेफरेंस मिलना इशू नहीं हो सकता. तो बस ये वो थोड़ा एमबीपीएस का इंटरनल मैटर होता है बट यूजुअली ऐसा होता है आपको आपके फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिलेगी. ओके शायद ठीक. हेलो सर. हाँ पूछो ना जानू. Sir, I am from ST category. The cutoff was 10.25 and I scored to 17, sir. 6.7 IT ऑफिसर. IT officer, sir. यस. 6.75 above the cutoff. Is there any chance to get the job, sir? Again repeat, how much marks you The got? cut- 17, 17, 17, sir. 17. And in which category you applied? ST category. ST cutoff is 10.25, 10. right? Yes, sir. Yes, you are having the +7. Yes, there are very high chances that you are going to get selected. And how much marks should I get in interview, sir? If How you can decide that how much marks you can get? I am expecting like around 10 to 12 in worst cases. See, you So- are expecting, so it is not the truth. So yes. you may get 18, you may get 8. So don't put expectations here. Just wait 1-2 weeks. After 1-2 weeks, you are going to get the result. So you are having the +7 marks. So you have to be relaxed. You don't worry so much. Just calm. Okay. Okay, sir. Thank you. Okay. Next is Anwar. Tariq Anwar. Yes, sir. Good evening, sir. Evening, sir. सर मेरा 27.5 है सर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आईटी में सर और बट माय इंटरव्यू वाज एवरेज सर. 27 तो अच्छा नंबर है ना आपका. बहुत अच्छा नंबर है तो. एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर. आपका मतलब मेरे हिसाब से तो 99.9999% सिलेक्शन हो गया है. So guys, sir, you I have can given mock interview of yours, sir. I have so taken the guys you course. can say congratulations to him. इनका लगभग सिलेक्शन हो गया. तो यहाँ पे कुछ इमोजी आता है जिसमें ये भेजते हैं ये आप लोग कैसे भेज रहे हो? ये अतुल ये बताना मेरे को भी कहाँ था इमोजी सर ये वाला. 3 डॉट है ना नीचे, उस पे क्लिक करोगे ना आपको तो मिल जाएगी इमोटिकन्स. मतलब ये स्माइली वाला है पास में, मुझे पता नहीं आप कौन सा यूज कर रहे हो, मोबाइल से कर रहे हो किससे. हाँ ये सेंड रिएक्शन मारेगा. इसको हार्ट देते हैं भाई को. चलो ये सिलेक्शन हो गया. बढ़िया है. ये तो मैंने यूज किया है नहीं इतना. Okay, thank you. Okay, any more question Tariq you are having? Sir, first preference maybe I got, sir. सर हाँ इसका क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं मिलेगा? इतने अच्छे नंबर है तो मिलेगा ना. Yes, Okay, you can okay, get. sir. Thank you, sir. You can get. Okay. Okay, sir. There is a difference between must and can. Okay. Okay, yes, sir. Yes. Okay. Next is Kaushik. Kaushik, my friend, you are here. Kaushik Mehendi. Yes, sir. हाँ पूछो ना. Yes. तो मेरा Six. क्वेश्चन है कि जो Yes. मुझे मेरा मेंस में मार्क्स है 28.50 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से. तो सर कितना चांसेस है कि पीएनबी मिले मुझे? 99.99%. ओके सर. सर एक और सवाल था कि मतलब वो पीएनबी में मतलब वो जो पोस्टिंग का कोई आइडिया है कि मतलब क्या उनके हेड ऑफिस में ही मतलब हेडक्वार्टर में ही हो सकता है या फिर For posting, I will make a separate video. Okay.
ओके सर। बट यूजुअली हेड ऑफिस रहता है। ओके। तो आपको भी रिएक्शन दे देता है, आपको भी सिलेक्शन हो गया है, आपको भी दिल दे देता है, ये दिल दे देता थैंक हूँ। यू। जो मैं आपको इमोजी भेज रहा हूँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा हाँ फिर ठीक है। मैं क्या है। ये इमोजी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, सो अच्छा। इतना पता नहीं मेरे को। ओके, रियल 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 कर्मा एक स्टूडेंट रह Yes, गए। यस, I got 21 from general. हाउ मच? So, and 21 uh, from general, and interview was like एवरेज? not, like I would say 14 plus for sure. So, how much chances to get any preferences? प्रेफरेंस आई कैन नॉट से, बट फॉर सिलेक्शन इट इज हाई चांसेस। Okay, thank you. Because see, most of students are going to put PNB as a first preference. So those who are toppers or those who got maximum marks. So there are the limited seats. So only 200 seats are there for PNB, right? So not everyone can fulfill the 200 seats. So those who got maximum marks and those who put North India. So there is a slight fight. I hope you can understand. Yes, Vacancies I got. कितना था total? 750 था क्या? Yes, around that. सर Not exactly. 724। चलो बढ़िया है फिर। Okay, next is Shri. Hello, sir. Good evening. Good evening. Sir, I just wanted to ask you regarding the cutoffs. Because we have like 724 vacancies, which is all-time high, right? So I just wanted to like have an idea like how the cutoff will be affected by the vacancies, like not for general but for all categories. I'm saying. See, the as per the can say vacancies, the cutoff is already decided by the mains examination. So as I can share my screen, so my screen is visible to you, my friend. Yes, sir. Yes. So as you can see, the IT cutoff, how much is the IT cutoff? It is 16.50. So when the vacancy is already being reported and after that there is a mains cutoff which is prepared by IBPS. Okay, now you can see your cutoff 16.5 even though there are vacancies are approximately 724 one ma'am said. Now you can see the cutoff for which bank we can say एक और था जिसका सबसे ज्यादा कट ऑफ गया था ये दिस कट वी कैन से लॉ ऑफिसर सो लॉ ऑफिसर यहाँ पे कितना कट ऑफ गया सर 44. 44 out of 60. It is very high cutoff. Why? There are two reasons for the cutoff. First is number of vacancies. Second, the level of question paper. So for you, this time the level of question paper was real IT examination. So the level of was little bit high. Because of that, the cutoff is low. Otherwise, if the level of questions were easy to medium, then for sure you are going to see the same cutoff here for IT also. But as the level was very, in my opinion, it was difficult. I will not say it was easy or medium, it was near between medium to difficult. So because of that reason, the cutoff is low. Now the final cutoff will be according to the mains cutoff only. So you are not going to see a drastic change here. Little bit variations you can see, but not a drastic changes. Sir, but for last year, when we compare previous days, right, the cutoff for UR will be in the range of 39 to 40, 41, 40.5 something. So the same will be See, able there to are see this another year, or reason. There's one more yes. reason. Vacancies, as I have told you, bank has the right to increase or decrease the vacancy at any point of time till your selection. When you are going to receive the offer, it is being written clearly that you are not going to assume that you are 100% going to entitle for this bank. So bank can increase or decrease the vacancy at any point of time. So I'm not able to predict the final cutoff here. So अभी आपको लग रहा है कि ये 700 वैकेंसीज है 724 है मे भी हो सकता है कि ये 700 वैकेंसी हो जाए बैंक कभी भी वैकेंसीज को कम या ज्यादा कर सकता है टू बी ऑनेस्ट
Yeah. बट यूजुअली वैकेंसीज सिमिलर ही रहती हैं आफ्टर मेंस एग्जाम। बैंक में ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। बट व्हेन यू आर गोइंग टू रीड द नोटिफिकेशन दिस लाइन इज क्लियरली मेंशन। आई बिलीव यू हैव read it, right? Yes, sir. Yeah. Okay, Shri. Any more doubt? No, sir. Thank you. Thank you so much. Okay, Shri. All the best. Thank Vikram. you, sir. Yeah. Hello, sir. Hi, Vikram. Sir, I'm from the HR background. Yes. Sir, I got 36.25 marks. So the cutoff was 26.75. Let me check. कल्चर आ गया। कल्चर के बाद राजभाषा, राजभाषा के बाद लॉ ऑफिसर, HR. Please repeat how much marks and which category? OBC category 36.25. OBC. Plus 10 रह गया ना आपका? हाँ जी सर 9.5. And how was your interview? Quite very good. तो first था सर मेरा. Okay, then good. Then in my opinion, you can say 99% you have selected. Last year I got 15.8 marks in interview. 10 point. Yes, this is a good score. So last year from how much marks you got in mains exam? I was in waiting list, sir. In mains, how much you got? Last time I got 22. And what was the cutoff? 19.25. So you were in red zone, right? Yes. I have explained the red, yellow, green. You have understood? Yeah, I got that. Okay. So you are in the red zone. So because of that, you are in that waiting list. But your interview was quite good. So you have moved from red to yellow zone. Yes. So this year you are already in the green zone. Yes, sir. So So I I'm will just give you expecting. yes, very high chances for your selection. From my end, an emoji to you. Thank you, sir. Okay. Sir, what will be the expected cutoff for the HR? क्योंकि अब की बार जो हमारी कट ऑफ गई वो पिछले सालों से बहुत ज्यादा गई है. वो तो है। देखो यार, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, 7-8 मार्क्स अब हो गई है. HR में क्या है, IT में लोगों को इतना अच्छा नहीं लग रहा है, सो दे आर मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड। Yes, sir. एंड कट ऑफ का भी कुछ बोलना सही नहीं रहेगा यार। जो मेंस का कट ऑफ गया है उसके अकॉर्डिंग यू कैन कैलकुलेट +4 राइट नाउ +5। जितना मैंने RTIs लगाई है उसके अकॉर्डिंग तो टोटल वैकेंसीज 25 से 37 हो गई है. हाँ, वो इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं है, 20-30 नहीं है। आप मार्केटिंग ऑफिसर में देखो 1000 वैकेंसी अपडेट हुई है। हाँ जी सर. वो उतना ज्यादा अपडेशन नहीं है, सो ज्यादा फर्क नहीं होगा उससे। ओके सर. बट आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर. ओके, नेक्स्ट इज प्रणव, सॉरी प्रज्वल श्रीवास्तव। Yes, sir. Yes, sir. I have got 27.25 in general category. Which post? IT officer. 27 और मेरा जो 27.25 +9 हो गया ना। हाँ, और उसमें मेरा जो इंटरव्यू है उसमें नॉन IT तो अच्छा गया था, पर IT में उन्होंने मेरे से 5 पूछे थे, मैं उसमें से 2 का आंसर कर पाया था, 3 का नहीं कर पाया था। तो कितने चांसेस हैं सर कि सिलेक्शन हो सकता है? इंटरव्यू फिर आपका एवरेज ही गया था यार, है ना? हाँ, इंटरव्यू मतलब नॉन IT के तो सारे बता दिए थे, IT में उन्होंने 5 पूछे थे, उसमें मेरे 2 सही थे। तो देखो मेंस में आपके अच्छे नंबर है, तो मेंस में आप ग्रीन जोन में हो। +11 के आसपास है, हाँ, +10 के आसपास है उसमें। तो देखो फर्स्ट प्रेफरेंस तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, बट मेरे ओर से जो जो सिलेक्शन है वो तो हो जाएगा आपका। 99% है कि सिलेक्शन रहेगा। फर्स्ट प्रेफरेंस आई एम नॉट एबल टू से एनीथिंग हियर। Which अच्छा। bank you have put? PNB? नहीं, फर्स्ट BOB है, उसके बाद PNB है। हाँ, फिर BOB मिलने के चांसेस हैं। अच्छा। चलो फिर तो 2 बैंक है, दोनों में से कोई भी मिल सकता है आपको ना। हाँ, मतलब पहला BOB और सेकंड PNB है। बढ़िया, आपको भी इमोजी भेज देते हैं। मेंस एग्जाम अच्छा गया आपके इसके लिए। हाँ। एनी मोर Thank you, क्वेश्चन? sir. No, sir. ओके प्रज्वल, Thank ऑल you, द sir. बेस्ट। Thank you, sir. अतुल कुमार। यस गुड इवनिंग सर। मेरा डाउट है कि
वैकेंट सीट को कैसे फिल करते हैं? लाइक अगर किसी का जैसे किसी को पीएनबी मिल गया है और वो नहीं गया काउंसलिंग के लिए, तो जो वैकेंट सीट रह गए हैं तो उसको कैसे फिल करता है? जैसे अगर 1 अप्रैल को सबको अलोकेट हो जाता है, किसी को पीएनबी, किसी को कैनरा जैसे, तो जिसको सेकंड प्रेफरेंस अलॉट हो गया है, अगर उसका फिर फर्स्ट प्रेफरेंस वाला फिर नहीं, एक बार बैंक अलोकेट हो गया तो बैंक चेंज नहीं होता। ओके सर। तो फिर वो जो खाली हुआ सीट वो फिर रिजर्व लिस्ट वालों को मिलेगा। राइट, रिजर्व लिस्ट से आएगा। ओके सर। ओके तो नेक्स्ट इज कनकन दास। सर गुड इवनिंग सर। सर मैं सर मार्केटिंग ऑफिसर का हूँ सर मेरा सर मार्क्स आया सर 26.75 ओबीसी का। मार्केटिंग ऑफिसर ओबीसी कट ऑफ गया था आपका 14.50। हाँ जी सर, मेरा आया सर 26.75। 6 प्लस 8 है क्या? प्लस 12.25। कितना है आपका? 26 से 22? 26.75 12 है, क्या बात है, गुड। मतलब चांस है सर। हो गया सिलेक्शन। सो गाइस यू कैन गिव इमोजी टू दिस गाय कनकन दास। इसको इमोजी दे देते सर को। बस मेरी ओर से तो सर है। थैंक यू सर। सर और ऊपर से सर ये मतलब जैसे सर पिछली बार सुना था कि मतलब जितना वैकेंसी था मार्केटिंग ऑफिसर्स का उसमें उन लोगों को बैच में ज्वाइन कराया सर। बैच रहता है और बैच में लेट आता है नंबर, बता देता हूँ मैं, फिर मैसेज करता हूँ। सी ज्वाइनिंग बैंक डिसाइड करता है कब आपको मिलेगी। ठीक है, 1 अप्रैल को रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए आई एम गोइंग टू अपडेट अनदर वीडियो। ओके ओके सर, ऐसा तो नहीं है ना इंटरव्यू में फेल करा देते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं रहता। इतना अच्छा तुमने ड्रेस पहना, क्यों फेल करेंगे? अरे सर वो तो सर एमबीए के टाइम पे। यही उसमें इंटरव्यू में यही पहन के गए थे ना, ऐसा ही। हाँ मतलब बस उसमें टाई था और शर्ट अलग था। हाँ कोई बात नहीं, फिर अच्छा है ना। मतलब सर इंटरव्यू तो सर मतलब मार्केटिंग से तो सर 2 ही क्वेश्चन पूछा था, उसका तो सर आंसर दे दिए थे। बाकी तो सर ऐसा मीटिंग कुछ से था नहीं बस। कुछ याद है क्वेश्चन? वो पूछा था क्या 4P 7P वाला? ना मेरे को पूछा था सर पहले तो सर मस्लो हायरार्की थ्योरी पूछा था। नेस्लर की, हाँ तो एक बार बताना हाँ उसमें सेल्फ एस्टीम नीड्स के ऊपर क्या आता है? एक्चुअलाइजेशन। इनका एज पीरियड क्या रहता है? एज उतना तो सर डिटेल से नहीं पता सर, अभी तो सर भूल गया सर। ठीक, मेरे को क्या याद है अभी। और सर दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि मतलब क्रॉस सेल मतलब बैंक का मतलब एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस कैसे बढ़ाओगे और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर मतलब नया कस्टमर बेस कैसे बढ़ाओगे और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का मतलब वो लॉयलिटी कैसे बढ़ाओगे। बस यही दोनों क्वेश्चन पूछा था और बाकी पूरा टाइम तो बस मेरे सर वही एक्सपीरियंस से बात कर रहा था, वही मतलब बस मतलब बात ही कर रहा था और कुछ क्वेश्चंस पूछा नहीं है सर। तो इससे मतलब सर मतलब एवरेज मार्क्स तो मिल ही जाएगा ना? आराम से। थैंक यू सर। नेक्स्ट इज नीलेश चौधरी। हेलो सर। नीलेश, वाई स्पेलिंग मिस्टेक है आपका नाम में? नहीं सर, एक्चुअली चौधरी नहीं, वो चौधरी है। CHOUDHARY होता है ना? यस सर, एक्चुअली इंटरव्यू में सर ने यही पूछा था मुझे पहली बात। यार अब तो इतने इंटरव्यू ले लिए, पता लग जाता है। सही बात है सर। एक्चुअली सर स्कोर बताना था मेरा। हाँ बताओ ना। ओबीसी का 24 आ रहा है। आईटी में? यस सर, आईटी में। एंड इफ आई कंसीडर द इंटरव्यू वाज एवरेज तो क्या लग रहा है सर आपको? जनरली मान लो ना, तो ओबीसी जनरल ईडब्ल्यू सेम ही रहता है, 2-4 नंबर में कुछ नहीं होता। हाँ 24 है ना? हाँ सर। हाँ मतलब सिलेक्शन होने के तो अच्छे चांसेस है, बट वो उसका प्रेफरेंस का कुछ नहीं कह सकते। तो ओके, अगर मतलब इंटरव्यू के एवरेज मार्क्स कंसीडर करें तो क्या? इंटरव्यू यहाँ पे बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा आपके प्रेफरेंस के अंदर। ओके सर। ओके नीलेश, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। एक्चुअल में मतलब स्पेलिंग यही है, आर तक ही है, वाई लगता है। हाँ सर, आर तक ही है, 14 है एक्चुअली। फुल में ये लिखा रखा है। हाँ सर।
हमारे यहाँ तो इसको मतलब ये कुछ और होता है कि जो बहुत ज्यादा बोलता है, बकवास करता है, उसको कहते हैं ज्यादा चौधरी मत बना के, ज्यादा चौधर ना किया गया। तो वो वही तो है आप ही वाला सर। ख्याल रखा है। चलो ओके नीलेश, ऑल द बेस्ट। थैंक यू ओके सर। नेक्स्ट इज हिमांशु कुमार। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा ओबीसी में 26.25 आया है अरे आईटी क्या में। क्या करोगे इतने नंबर लाके? इंटरव्यू लेकिन 26। सर एवरेज किया था। जनरल के हिसाब से देखते हैं तो 26 है, तो ठीक है, +8 है ना जनरल के हिसाब से तो। 10 के आसपास है। 26 है ना आपका? जी जी। ओबीसी में या जनरल ओबीसी में? में 10.75 एक्चुअली। अच्छा, ओबीसी के हिसाब से देख रहे हो, हाँ। +10 तो अच्छा नंबर होता है मेरे हिसाब से, अच्छा है। और इंटरव्यू अबव एवरेज गया था? नहीं एवरेज ही किया था। हाँ, फिर तो मतलब देखो, सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है, सो एक इमोजी मैं आपको दे देता हूँ, पर प्रेफरेंस आई कैन नॉट से बड़ी। ओके थैंक यू सर। ये इमोजी अच्छा लग रहा है, आप भी दिया करो दूसरों को यार। गुड। नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट इज प्रणव सिंह। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो प्रणव, गुड इवनिंग। मैं AWS कैटेगरी से हूँ और मेरा 25 मार्क्स आया है। इंटरव्यू अप्रोक्स एवरेज ही गया था, कोई बहुत अच्छा नहीं था। तो आपने किस में अप्लाई किया था, जनरल में? EWS कैटेगरी से। ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का तो सेम ही किया है, जनरल ईडब्ल्यूएस का तो। EWS का सर आई थिंक 14.75 था। आईटी का? हाँ जी, IT। नहीं यार, 18.50 है। नहीं, 16.5 सर जनरल का है। हाँ तो माय स्क्रीन इज विजिबल। ओके, मैं मार्केटिंग ऑफिसर में देखा। मुझे कंफ्यूज हो गया। अरे क्योंकि उसमें सेम सेम चला गया, देखो मैं दिखाता हूँ। मैं मार्केटिंग में क्या है, सेम चला गया, ये देखो, दिख रहा है आपको? जनरल 18.50, ईडब्ल्यूएस 18.50। ओके और ओके ओके। ओबीसी और एसटी का देखो सेम गया है, एसटी ओबीसी 14.50। तब मार्केटिंग में बहुत भीड़ है इस बार। आपका कितना गया सर? सर मेरा 25 आया है एंड AWS कैटेगरी एंड इंटरव्यू +9 हो एवरेज गया ना? था। +9 है ना? हाँ, अप्रोक्स 10.25। फिर तो बहुत ज्यादा चांस है सिलेक्शन के। और +10 पॉइंट है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में मिल सकता है। विच बैंक यू हैव पुट ऑन फर्स्ट प्रेफरेंस? PNB। चलो पीएनबी मिलने के बहुत ज्यादा चांस है, एक इमोजी आपको भी दे देते हैं। थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट बडी। नेक्स्ट इज आशुतोष पांडे। यस सर। सर मेरे मार्क्स तो बहुत कम है इस बार। कितने बताओ ना यार। 14.75 है EWS में, एकदम सर जस्ट कट ऑफ ही है। 0.75। हम्म। इंटरव्यू? इंटरव्यू ठीक गया था सर, बस नबार्ड के 1-2 क्वेश्चंस में मैंने हिचकिचाया था। बाकी IPv4 IPv6 में डिफरेंस वगैरह, मतलब जो भी टेक्निकल पूछा था मैंने सब बताया था। इंटरव्यू मतलब अच्छा गया था? हाँ, मतलब बस वही नबार्ड का थोड़ा सा दिक्कत कोई हुआ नहीं, एक था। आधा तो चलता है। हाँ। बट ये है कट ऑफ एग्जैक्ट मैच किया है ना। वही सर, तो चांसेस हमको कम ही लग रहे हैं ऑल दो। सेम हेयर बडी। बट ये है कि वेटिंग लिस्ट में शायद आ जाए, और हो सकता है कि और स्टूडेंट्स भी ईडब्ल्यूएस में उतना अच्छा ना मार्क्स लेके आए जितना आप सोच रहे हो। सर यही होप है, क्योंकि सर प्री में हम लोग का मतलब इस बार काफी हाँ, मतलब एक नीचे था। 1 अप्रैल तक देखो, मेरे हिसाब से 1 अप्रैल तक आप, इन माय ओपिनियन, जितना लोगों से पूछोगे तो उतना हो सकता है कि नेगेटिव माइंड ही में बोल रहे सब लोग वैसे, पर अलग हम अलग विचार आए। ऑल्दो हम मान के ही चल रहे हैं कि नहीं होगा, बट हाँ, 1 अप्रैल को एक बार रिजल्ट देख लेना, बीच में हाँ। ज्यादा लोगों से मत पूछो, है ना? सब में भी हो सकता है वेटिंग में हो जाए, क्योंकि SBI हाँ, वाले भी बहुत होंगे इसमें जो बिल्कुल चले गए होंगे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। SBI SO में। एसबीआई वाले भी बहुत होंगे जो नहीं ज्वाइन कर, तो इसीलिए मैंने हाँ। शुरू में बता दिया था, वेटिंग लिस्ट में इसमें बहुत सारे लोगों का नंबर आने वाला है। वेटिंग लिस्ट के लिए एक बार आप रेडी रहना, ठीक है? ओके ठीक है सर। प्रणव, ऑल द बेस्ट बडी। थैंक यू सर। आशुतोष पांडे। आशुतोष, क्वेश्चन हो गया था ना? हाँ सर, हो गया। अनिकेत राठौड़। सर नमस्ते सर।
नमस्ते निकेत। सर मेरे 18.25 है, रेड जोन में हूँ, कोई चांस है क्लियर होने का? किसमें आए थे? जनरल जनरल। में? हाँ, इंटरव्यू पे डिपेंड करता है दोस्त अब सब। इंटरव्यू बिलो एवरेज ही था। इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। आप कह रहे हो बिलो एवरेज, अगले ने कितने नंबर दिए किसी को नहीं पता ना। 12 एक्स तो मतलब एक्सपेक्टेशन ही है, अब इंटरव्यू का वेट करो कितना नंबर आता है, फिर देख लेना एक बार आप। वेटिंग लिस्ट भी नहीं आई, वेटिंग लिस्ट में भी नहीं है मतलब उम्मीद। क्यों नहीं है वेटिंग लिस्ट में यार? वेटिंग लिस्ट में है, बहुत सारे लोग हैं जिनका इधर उधर सिलेक्शन हो जाएगा, वेटिंग नहीं लिस्ट मतलब में है चांस। आने का चांस है ये पूछ रहा हूँ। हाँ, मेरे हिसाब से चांस तो है वेटिंग का। अच्छा अच्छा, हाँ सर। सर अगर वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर होती है सर, कुछ पता है आपको? सर वेटिंग लिस्ट जैसे अभी 2 बार होती है, एक तो ईयर मिड में होती है, और जब आपका ये रिजल्ट दोबारा आएगा तब एक बार वेटिंग लिस्ट की होती है। मतलब कि 31 रहता है ना, 31 दिसंबर के आसपास एक बार उस टाइम लिस्ट आती है, वेटिंग लिस्ट आती है। और जब ओके सर। आपका नया नोटिफिकेशन आता है उससे शुरू में भी एक बार वेटिंग लिस्ट आ जाती है, नोटिफिकेशन या रिजल्ट से पहले। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट इज जय। हेलो सर। तो जय, थर्ड लास्ट। योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल जय। सर ओबीसी में 18.5 बन रहा है। नहीं जय, आवाज नहीं आ रहा। यू कैन टाइप है, यू कैन टाइप। जय एक बार यहाँ पे टाइप कर दो, यहाँ पे एक बार आप टाइप कर दो ना जय। आफ्टर जय, ओके जय ने टाइप कर दिया, वेरी गुड। ओबीसी 18.5 इंटरव्यू एवरेज, यस 50-50 मतलब है। यस, इन माय ओपिनियन यस फॉर चांसेस, मेरे हिसाब से यस चांसेस है। इंटरव्यू अच्छा गया है तो आपका चांसेस आ सकता है। मार्केटिंग ऑफिसर इंटरव्यू, प्लीज रिप्लाई, देयर इज अ डिस्टर्बेंस अराउंड, आई गॉट 16.5 ओबीसी इन चांस रिजर्व लिस्ट। यस मैम, यस इन माय ओपिनियन। 26 मार्केटिंग ऑफिसर जनरल, एनी चांस जनरल मार्केटिंग, लास्ट पेज 26 ना, 18.5 मार्केटिंग ऑफिसर कट ऑफ गया ना, 26 है। यस बहुत ज्यादा चांस है ना, आपका हो गया है, वेरी गुड। कर दे 90% चांस है आपका ना, बहुत ज्यादा चांस है आपका, अच्छे मार्क्स है आपके कट ऑफ के हिसाब से। ठीक है, सो लास्ट कौन था अपना? अजीत, सेकंड लास्ट स्टूडेंट। सर वही 2-3 मिनट लेना था सर, वही मैं पूछा था ना सर 16.5, तो लास्ट में हूँ कि या फिर वही से पूछा। अच्छा, आपका 16.5 ही आया क्या? सर आप पहले मैंने पूछा था ना सर कि मेरा सेकंड लास्ट चांस है, तो अच्छा अच्छा, अच्छा लास्ट वाला स्टूडेंट हो गया। अच्छा हो गया ना फिर तो सबका। चलो एक और स्टूडेंट रह गया था। ठीक, उनसे बात कोहिनूर, कोहिनूर आप हो यहाँ पे?